Hello everyone. Our topic for today's video is graphical representation of motion. आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो तरह तरह के मोशन हमने सीखे हैं उसे हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. We will study two types of graph, that is distance time graph and velocity time graph. In distance time graph, we are going to take distance on y-axis and time on x-axis, and same for the velocity time graph, velocity on y-axis and time on x-axis. So our first type of distance time graph is when object is at rest. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट मीन्स ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है बट टाइम चेंज होता जा रहा है बिकॉज टाइम पास कैन नेवर बी रिकॉल. एक बार टाइम बीत गया वो वापस नहीं आएगा, वो बढ़ता ही रहेगा. लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट अ गर्ल हैज़ मूव्ड फ्रॉम हिज बेडरूम टू स्टडी रूम. अपने बेडरूम से स्टडी रूम तक गई बच्ची आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. तो अब शी इज़ स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स ये 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, दैट इज शी इज़ एट रेस्ट. सो इन दिस केस our graph will become a straight line that is parallel to the x-axis because position तो सेम है, 20 मीटर का 20 मीटर और टाइम पास हो रहा है. तो हर टाइम पे आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स वी आर चेकिंग उसकी पोजीशन 20 मीटर ही है. सो व्हेन वी विल प्लॉट इन द ग्राफ वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. Now our second type of graph is for an object moving with uniform motion. And we had already discussed in our previous video that what is uniform motion. When an object covers equal distance in equal interval of time, the object is said to be in uniform motion. Let's suppose this boy is moving in uniform motion, that is distance traveled by boy in first 5 seconds is 10 meter, then in next 10 seconds that distance will become 20 मीटर. मतलब हर 5 सेकेंड में हमारा ये जो बॉय है ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है. सो आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स, व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट्स on the graph and join these points, we will get a straight inclined plane. With the help of the distance time graph, we can calculate the speed of the object also. अब इस केस में if we are saying that object is traveling uniform in if object is traveling in uniform motion, तो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड भी सेम होगी, क्योंकि अगर स्पीड कम या ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस भी कम या ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दैट. सो इन दिस केस हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है. नाउ टू कैलकुलेट स्पीड वी हैव द फॉर्मूला दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ इन दिस ग्राफ इफ़ यू नोटिस हेयर, जो डिस्टेंस है वो हमारा वाई एक्सिस के थ्रू दिया हुआ है और टाइम हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर है. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ. नाउ वाई एक्सिस पे हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट की फ्रॉम y1 टू y2. सो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन y1 टू y2 we will calculate it by subtracting y1 from y2 divided by same for time x2 minus x1. So after putting the values and after calculation we will conclude that our speed is 2 meter per second. Our last type of distance time graph is non-uniform motion, means unequal distance in equal interval of time, and it will be a random slope. We can also say that the graph for the non-uniform motion will be a non-straight line. Now let us move towards the velocity time graph. So our first type of graph is velocity time graph for an object moving in constant
speed, moving with constant speed. Constant velocity means सेम वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी, हमारा ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा. सो ऑन एक्स एक्सिस we are going to write down time, and on y axis we are going to write down velocity here. Let's suppose this girl is riding a bicycle at the velocity of 30 meter per second throughout the trip. So graph will be a straight line again parallel to the x axis, because velocity में कोई change नहीं है, वो हर मोमेंट पर 30 मीटर पर सेकेंड ही ट्रेवल की स्पीड से या वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है. सो इट विल बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. इट इज सेड दैट area under the velocity time graph gives us the distance traveled by object. Means अगर हम अपने ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं अंडर द ग्राफ, तो वो हमें बता देगा कि ऑब्जेक्ट ने हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग वी आर गोइंग टू derive this equation from the same graph, that is object moving with constant speed. First of all, we will join our graph line with x-axis and named the formed figure as ABCD. As we know, speed is equals to distance upon time. अब यहाँ से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. और अगर हम ग्राफ में नोटिस करें तो स्पीड हमें AD बता रहा है एंड टाइम हमें DC बताएगा. सो इफ़ यू नोटिस हेयर जो फिगर बन रहा है ABCD, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है और AD जो है वो ब्रेड्थ बता रही है रेक्टेंगुलर की, और DC हमारा लेंथ बता रही है हमारे रेक्टेंगल की. सो वी कैन से दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD. So we can say that area under the velocity time graph gives us distance traveled by an object. Our second type of velocity time graph is when the velocity of an object is increasing at uniform rate. मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है. लेट्स सपोज हर 5 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बाय 10 मीटर पर सेकेंड. सो अगेन व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड जॉइन दीज पॉइंट्स, we will get a straight line, straight inclined line. So graph for the object moving with increased velocity at uniform rate is inclined straight line. Now let us move towards our last type of velocity time graph, that is वेलोसिटी डिक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट. अब इस केस में हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है विद यूनिफॉर्म रेट. लेट्स से कि हर 5 सेकेंड में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. अगेन आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ एंड जॉइनिंग माई पॉइंट्स, आई विल गेट एन डिक्लाइंड स्ट्रेट लाइन. नाउ डिक्लाइंड मीन्स कम होती हुई जिसकी स्लोप हो वो डिक्लाइन होता है. तो इन दिस केस आई हैव गॉट अ ग्राफ हैविंग डिक्लाइंड स्लोप बट अ स्ट्रेट लाइन इट इज. सो दैट्स द एंड ऑफ द टुडे वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माई चैनल. थैंक यू.